taxes, direct taxes and indirect taxes. Direct taxes. Direct taxes are those whose final burden falls on that person who makes the payment to the government. Here, the incidence and impact of the tax lie on the same person. For example, income tax and wealth tax. डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जिसका इम्पैक्ट मतलब इनिशियल बर्डन एंड इंसिडेंस मतलब फाइनल बर्डन उसी पर्सन के ऊपर होता है जिसके ऊपर टैक्स को लगाया जाता है. जैसे इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, हाउस टैक्स हो गया, गिफ्ट टैक्स हो गया, ये इसका एग्जांपल है. नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट टैक्स. Indirect taxes are those which are paid to the government by one person but their burden is borne by another person. Indirect taxes वो होते हैं जिसका impact और incidence same person पर भी पड़ सकता है और different person पर भी पड़ सकता है, अर्थात कि उसका जो impact है उसको shift करा जा सकता है. Here the incidence and impact of tax lie on different persons, जैसे कि example GST. Clear? Now difference between direct tax and indirect tax. First point is meaning. Direct taxes are those taxes whose final burden falls on that person who makes the payment to the government. Indirect taxes are those taxes which are paid to the government by one person but their burden is borne by another person. Direct taxes वो होते हैं जिसका initial और final जो burden है वो उसी person के ऊपर पड़ता है जिसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है. लेकिन indirect taxes वो taxes हैं जिसका initial और जो final burden है वो different persons के ऊपर पड़ता है. Incidence and impact. When the incidence and impact of the tax lie on the same person, it is called direct tax. When the incidence and impact of the tax lie on different persons, then it is called indirect tax. Direct tax वो होता है जिसका impact और incidence उसी व्यक्ति के ऊपर पड़ता है जिसके ऊपर टैक्स को लागू करा जाता है, और indirect tax वो होता है जिसका impact और incidence different persons पर पड़ता है. Third point, shift in taxation. The impact of direct tax cannot be shifted. Indirect tax, the impact of indirect tax can be shifted. जो डायरेक्ट टैक्स का असर है उसको शिफ्ट नहीं करा जा सकता, जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसके असर को शिफ्ट करा जा सकता है. नेक्स्ट इज नेचर. डायरेक्ट टैक्सेस आर जनरली प्रोग्रेसिव इन नेचर. इनडायरेक्ट टैक्सेस दीज आर जनरली रेग्रेसिव इन नेचर. प्रोग्रेसिव इन नेचर का मीनिंग हुआ कि जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो प्रोग्रेसिव होते हैं. प्रोग्रेसिव मतलब कि उसका रिच के ऊपर ज़्यादा बर्डन होता है और पुअर पर कम बर्डन होता है, और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं ये रेग्रेसिव होते हैं. इसका मतलब इसका पुअर के ऊपर ज़्यादा बर्डन होता है और रिच के ऊपर कम बर्डन होता है. इफेक्ट ऑन मार्केट प्राइस. डायरेक्ट टैक्स, दीज टैक्सेस डू नॉट अफेक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. इनडायरेक्ट टैक्सेस हैव अ डायरेक्ट एंड पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो मार्केट प्राइस के ऊपर इतना असर नहीं डालते. जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं ये गुड्स और सर्विसेज के ऊपर होते हैं, इसलिए ये मार्केट प्राइस के ऊपर ज़्यादा असर डालते हैं. Example of direct taxes are income tax, wealth tax, corporate tax. Example of indirect tax are GST. Clear? Now, non-tax receipts. Non-tax receipts are those receipts which are received from sources other than taxes like fee, fine, escheat, etc. Non-tax receipts वो receipts होती हैं जो टैक्स के अलावा अदर सोर्सेज से वसूल करी जाती हैं, जैसे फी, फाइन, एस्टीट. Some of the non-tax receipts are as follows. कुछ non-tax receipts इस प्रकार हैं. Number 1, fee. One of the main source of non-tax receipts of the government is fee charged by government. It is imposed by government to cover the cost of services provided by it. Fee जैसे passport fee, birth and death fee, land registration fee, passport fee, ये fee के example हैं. Fee government के income का एक ऐसा source है जिसमें कि जो भी person fee pay करता है उसको government अपनी services provide करती है. जितना फ़ी का अमाउंट होता है उसके इक्विवेलेंट उसको सर्विसेज मिलती हैं. जो फ़ी देता है सिर्फ उसी को सर्विसेज मिलती हैं. अ फी इज़ पेबल टू द गवर्नमेंट फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड टू पब्लिक. एग्जांपल, लैंड रजिस्ट्रेशन फ़ी, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन फ़ी, कोर्ट फ़ी. मेन फीचर्स ऑफ फ़ी आर, फ़ी इज़ अ कंपल्सरी पेमेंट. कि मैंने आपको बताया कि फ़ी ऐसी पेमेंट है जो कि गवर्नमेंट उन लोगों को देती है पब्लिक सर्विसेज के लिए, जैसे जब कोई ज़मीन की रजिस्ट्री करवाता है, अपना बर्थ या डेथ को रजिस्ट्रेशन कराता है, या कोर्ट में कोई मुकदमे की जो फीस होती है, एट्सेट्रा. फ़ी के फीचर्स हैं. फ़ी इज़ अ कंपल्सरी पेमेंट. फ़ी एक कंपल्सरी पेमेंट है. फ़ी प्रोवाइड स्पेसिफिक बेनिफिट टू द पेयर. फ़ी का बेनिफिट सिर्फ पेयर को मिलता है. जिसने फ़ी नहीं पे करी होती है उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलता. फी इज़ नॉट अ पेमेंट फॉर कमर्शियल सर्विस. ये किसी कमर्शियल सर्विस प्रॉफिट मोटिव के लिए फ़ी पे नहीं करी जाती. सेकंड, नॉन टैक्स रिसिप्ट. लाइसेंस एंड परमिट फी. इट इज़ बट मीनिंग ऑफ लाइसेंस. It is payment
made to government to seek permission for something, license fee paid to get license to drive vehicles or for permission of keeping a gun etc. लाइसेंस एंड परमिट का अर्थ है कि जब कोई भी पर्सन कोई भी काम की परमिशन सरकार से लेता है तो उसको लाइसेंस कहते हैं। जैसे हम ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फ़ी लेते हैं, फ़ी गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाते हैं, हम ये गन के लाइसेंस वगैरह के लिए वो फ़ी लेते हैं, या लिकर लाइसेंस के लिए जो लिकर वेंडर्स हैं वो लेते हैं, वो उसमें इंक्लूड होते हैं। नंबर 3, स्पेशल असेसमेंट। इट इज़ दैट पेमेंट विच इज़ मेड बाय द ओनर्स ऑफ दोज प्रॉपर्टीज़ whose value has appreciated due to developmental activities of the government. For instance, when as a result of development of IT services, value of the neighboring property or its rental value appreciates, then a part of the developmental expenditure is recovered from the owners of such property by way of special assessment. स्पेशल असेसमेंट वो पैसा है जो कि सरकार उन लोगों से वसूल करती है जब सरकार कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ करती है। जैसे अगर किसी भी जगह कोई आईटी पार्क वगैरह लगाया जाता है तो उसके आसपास के जो एरियाज़ होते हैं उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू अप्रिशिएट हो जाती है, तो सरकार अपनी जो कॉस्ट का में से कुछ एक्सपेंडिचर को निकालने के लिए जिन लोगों को उस प्रॉपर्टी की वैल्यू अप्रिसिएशन हुई है उनसे कुछ पैसा चार्ज करती है, उसको स्पेशल असेसमेंट कहा जाता है। एस्टेट Estate refer to that income of the government which accrues out of the property which does not have a legal heir. Income from such property belongs to the government. Estate सरकार की इनकम का वो सोर्स है जो उसको वहाँ से मिलता है उस जमीन या जायदाद से जिसका कोई भी लीगल क्लेमेंट, जिसका कोई भी कानूनी वारिस नहीं होता। 5th, fines and penalties. Fines and penalties are those payments which are made by those who break law. Its actual aim is to force the people to be law abiding. It is determined by the government in an arbitrary manner depending on the degree of offence. Fines and penalties सरकार की इनकम का वो सोर्स है जो वो उन लोगों से वसूल करती है जो कि कानून की उल्लंघना करते हैं। जैसे अगर आप व्हीकल वगैरह ठीक नहीं चलाते, प्रॉपर कागज़ों के साथ नहीं चलाते तो आपको चालान होता है, या अगर आप अपना बिजली या पानी का बिल लेट भरते हैं तो जो आपको फ़ाइन होता है। यहाँ पर सरकार जो पैसा वसूल करती है उसका मकसद लोगों से पैसा बटोरना नहीं होता बल्कि लोगों को कानून की इज्जत करना सिखाना होता है। गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। गवर्नमेंट रिसीव्स गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स फ्रॉम विद इन द कंट्री एंड अब्रॉड. This is not a permanent source of revenue. This is generally received during natural calamities like flood, earthquake and maybe during war situations. गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स सरकार की आमदनी का वो सोर्स हैं वो जो कि सरकार तब सरकार को देश के अंदर से भी प्राप्त होता है और दूसरे कंट्री से भी प्राप्त होता है। उस समय प्राप्त होता है जब देश में कोई प्राकृतिक विपदा, नेचुरल कैलेमिटी, अर्थक्वेक, फ्लड, फायर वगैरह आए, या जैसे अभी आप देखते हैं कि जैसे कोरोना जैसी जो महामारी आई है तो उससे कि हम भी विदेशों की मदद करते हैं और विदेशी लोग भी हमारी मदद करते हैं। ऐसे जैसे हम प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में जो पैसा देते हैं वो भी इसका ही एक हिस्सा है। इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस। प्रॉफिट फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस, एग्जाम्पल इंडियन रेलवेज, इंडियन ऑयल, भिलाई स्टील प्लांट एटसेट्रा ओन्ड बाय द गवर्नमेंट constitute the income of the government. Here the objective is to earn revenue. इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस का अर्थ है कि कुछ ऐसे एंटरप्राइजेज होते हैं जो सरकार के अपने होते हैं, जैसे नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड उसका एक एग्जांपल है, रेलवेज उसका एग्जांपल है कि ऐसे जो सरकार के डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेज होते हैं, कुछ जो कमर्शियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पर सरकार का मकसद होता है पैसा कमाना और उस पैसे को वो देश वासियों के वेलफेयर के ऊपर खर्च करती है। इंटरेस्ट ऑन लोन्स। रिसिप्ट्स ऑफ interest by government on loans given by it to state government, union territories is an important source of non-tax revenue. Interest on loans सरकार है वो राज्य सरकारों को या दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों को कुछ लोन्स देती है। उन लोन्स के ऊपर जो सरकार को ब्याज मिलता है वो सरकार की रेवेन्यू रिसिप्ट्स का एक हिस्सा होता है। फॉर फीचर ऑफ बॉन्ड्स, these are penalties imposed by courts for non-fulfillment within orders or non-fulfillment of condition of agreement or contract. फॉर फीचर ऑफ बॉन्ड्स होता है कि अगर जैसे कोई भी कैदी जब उसको पैरोल के ऊपर छोड़ा जाता है तो उससे बॉन्ड वगैरह साइन करवाया तो उसको बॉन्ड के ऊपर छोड़ा जाता है। अगर वो उसकी उल्लंघना करता है तो उसको जब्त कर लिया जाता है। क्लियर? तो मैंने यहाँ पर आपको रेवेन्यू रिसिप्ट के 2 टाइप्स बताया, टैक्स और नॉन टैक्स। अब हम इन दोनों में डिफरेंस करेंगे कि टैक्स रिसिप्ट क्या होते हैं और नॉन टैक्स रिसिप्ट क्या होते हैं। फर्स्ट इज सोर्स। टैक्स रिसिप्ट इंक्लूड रिसिप्ट फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेस
Non-tax receipt is the revenue of the government from sources other than tax. टैक्स रिसिप्ट वो होती है जो सरकार को हर प्रकार के टैक्स से मिलती है. नॉन टैक्स रिसिप्ट वो होती है जो कि टैक्स के अलावा अदर सोर्सेज से मिलती है. नेचर ऑफ पेमेंट. टैक्स रिसिप्ट इट इज़ अ लीगल कंपल्सरी पेमेंट इम्पोज्ड ऑफ द गवर्नमेंट. जो टैक्स रिसिप्ट होती है ये लीगल ये होती है और जो कंपल्सरी होती है और गवर्नमेंट को पे करनी होती है. नॉन टैक्स रिसिप्ट इट इज़ नॉट कंपल्सरी पेमेंट. ये कंपल्सरी पेमेंट नहीं होती. एग्जाम्पल टैक्स रिसिप्ट, income tax, wealth tax, GST are example of tax receipt. Non-tax receipt, fee, fine, license, etc. Corresponding benefit. No direct benefit is received in exchange of tax paid. कि अगर आप टैक्स पे करते हैं तो आपको कोई भी डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलता. Non-tax receipt, it is paid in lieu of benefit or services received. कि वो बेनिफिट मिलता है क्योंकि आपने जो टैक्स है वो पे किया, जो आपने टैक्स पे किया होता है, इसलिए नॉन टैक्स रिसिप्ट के रूप में जिसने पे करा होता है सिर्फ उसी को बेनिफिट मिलता है. अब बजट रिसिप्ट का सेकंड पार्ट है कैपिटल रिसिप्ट. कैपिटल रिसिप्ट्स टोटली रेवेन्यू रिसिप्ट से अलग होती है. जैसे आपने रेवेन्यू रिसिप्ट में मैंने आपको दो फीचर बताए कि जो भी सरकार को इनकम के रूप में जो रिसिप्ट्स होती हैं वो रेवेन्यू रिसिप्ट होती हैं. ये ऐसी रिसिप्ट्स होती हैं जो सरकार को रेगुलर बेसिस के ऊपर मिलती हैं. इससे ना तो उसके असेट्स में कमी आती है और ना ही उसकी कोई लाइबिलिटी होती है. लेकिन रेवेन्यू रिसिप्ट एग्जैक्टली इसके अपोजिट है. जो कैपिटल रिसिप्ट है इसके अपोजिट है रेवेन्यू रिसिप्ट से. कैपिटल रिसिप्ट्स आर दोज एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर विच अफेक्ट असेट और लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट. दीज रिसिप्ट create a corresponding liability for the government, example borrowing, lead to reduction in assets of the government, example disinvestment, recovery of loan. कैपिटल रिसिप्ट सरकार की वो एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट्स होती हैं जो कि सरकार के लिए करस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी होती हैं. करस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी मतलब बोरिंग. जैसे हम किसी से कोई भी पैसा कर्ज के रूप में लेते हैं तो हमें उसको ब्याज के साथ वापस करना पड़ता है, तो जिससे हमारे असेट्स जैसे हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाती है और असेट्स में रिडक्शन होती है. सेकंड, लीड टू रिडक्शन इन असेट्स. इससे सरकार के असेट्स में कमी आती है. जैसे डिसइन्वेस्टमेंट. डिसइन्वेस्टमेंट जब सरकार अपना कोई असेट बेचती है, यानी कि अपना कोई भी असेट में प्राइवेट सेक्टर को शेयर्स बेचती है तो उसके असेट्स में कमी आती है. तो आपको इसमें बता रही हूँ कैपिटल रिसिप्ट में बोरिंग आती है विद इन द कंट्री एंड अब्रॉड. अदर रिसिप्ट्स में आते हैं डिसइन्वेस्टमेंट. डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स व्हेन गवर्नमेंट सेल्स इट्स शेयर्स टू प्राइवेट सेक्टर. थर्ड, रिकवरी ऑफ लोन्स. तो कैपिटल रिसिप्ट्स are further classified into three categories. Number 1, borrowing and other liability. Number 2, recovery of loan. Number 3, other receipts that includes disinvestment. Now, in India, capital receipts of the government are further classified. These are classified into three categories. Number 1, borrowing and other liabilities. Borrowing creates liability for the government. Accordingly, borrowing are to be treated as capital receipt. It is debt creating capital receipt. Borrowing, जब हम किसी से भी उधार लेते हैं तो वो कैपिटल रिसिप्ट है क्योंकि वो एक लाइबिलिटी क्रिएट करता है कि हमने उसको पैसा वापस देना है. गवर्नमेंट मनी बोरो करती है जनरल पब्लिक से, जिसको मार्केट बोरिंग कहा जाता है. रिजर्व बैंक से करती है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से करती है, जिसमें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस आते हैं और फॉरेन गवर्नमेंट्स आती हैं. सेकंड इज रिकवरी ऑफ लोन्स. द डेटर्स आर असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट. जो डेटर्स होते हैं वो सरकार के असेट्स होते हैं. रिकवरी ऑफ लोन्स कॉजेज द रिडक्शन इन असेट्स. जब लोन्स को रिकवर करा जाता है तो उससे असेट्स में रिडक्शन आती है. हैंस रिकवरी ऑफ लोन इज अ कैपिटल रिसिप्ट. तो जो रिकवरी ऑफ लोन है वो एक कैपिटल रिसिप्ट है. इट इज नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट. थर्ड इज अदर रिसिप्ट. इट इंक्लूड्स ऑल अदर कैपिटल रिसिप्ट्स. डिसइन्वेस्टमेंट, ये ऑल अदर कैपिटल रिसिप्ट्स आती हैं जिसमें डिसइन्वेस्टमेंट होती है. डिसइन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट का अपोजिट होता है. इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है परचेज ऑफ असेट्स. डिसइन्वेस्टमेंट का अर्थ होता है सेल ऑफ असेट्स. इन द इक्विटी होल्ड इट इज द अपोजिट ऑफ इन्वेस्टमेंट. इन द इक्विटी होल्डिंग is one such receipt. Disinvestment occurs when the government sells off its shares of public sector enterprises to private sector. It is called privatization. It is treated as capital receipt because it causes reduction in assets of the government. It is non-debt creating capital receipt.
तो अदर रिसिप्ट्स में आती है डिसइन्वेस्टमेंट। जब गवर्नमेंट अपने असेट्स को किसी प्राइवेट सेक्टर को बेचती है तो उससे सरकार के असेट्स में कमी आती है, उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो बेटे मैंने आपको बताया कि रेवेन्यू रिसिप्ट दो प्रकार की होती हैं, एक टैक्स और नॉन टैक्स होती हैं। और जो कैपिटल रिसिप्ट है उनको तीन पार्ट में डिवाइड करा गया, बोरोइंग एंड अदर रिसिप्ट्स, रिकवरी ऑफ लोन्स और अदर रिसिप्ट्स में। नाउ डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसिप्ट एंड capital receipt. Number one, on the basis of first point, creation of liability. Revenue receipt. These receipts do not create any corresponding liability for the government. Example, tax receipt, license fee. Capital receipt. These receipts create corresponding liability for the government. Example, borrowing. Revenue receipt वो रिसिप्ट होते हैं जिससे ना तो सरकार के असेट्स में और लाइबिलिटी में कोई भी असर नहीं पड़ता। कैपिटल रिसिप्ट्स वो होती हैं जिससे कि सरकार के असेट और लाइबिलिटीज़ में असर पड़ता है। रेवेन्यू रिसिप्ट के एग्जांपल हैं टैक्स और नॉन टैक्स, और कैपिटल रिसिप्ट के एग्जांपल हैं बोरिंग। सेकंड डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन इन असेट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स, दीज डू नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। एग्जांपल, लाइसेंस फी, गिफ्ट एंड ग्रांट, फाइन्स एंड पेनल्टीज। Capital receipt, these cause reduction in assets of the government, recovery of loan, disinvestment. रेवेन्यू रिसिप्ट से किसी भी प्रकार के सरकार के असेट्स में कमी नहीं आती है, जैसे लाइसेंस फी, गिफ्ट, ग्रांट, फाइन, पेनल्टी। कैपिटल रिसिप्ट से सरकार के असेट्स में कमी आती है, जैसे रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट। थर्ड पॉइंट, इफेक्ट ऑन असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। दिस इज द बेसिस। नाउ इट्स एक्सप्लेनेशन। Assets and liabilities of the government are not affected in case of revenue receipts. In case of capital receipts, assets and liabilities of the government are affected. Now, lastly, nature. Revenue receipts, these are reoccurring in nature. Capital receipts, these are non-recurring in nature. Revenue receipts are reoccurring in nature.